हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। समझने की कोशिश करते हैं कि एटम के इंटरनल पार्ट में कौन से पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट एटम, फॉर द एग्जांपल दिस इज एटम। ओके, एटम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस। फर्स्ट न्यूक्लियस। ओके, दिस इज न्यूक्लियस and the extra nuclear part, this is extra nuclear part and this is nucleus. So an atom is formed from the nucleus and the extra nuclear part. These contains three types of subatomic particles. What are that types of three subatomic particles? वो कौन से particles हैं? चलो let's discuss. Number one, nucleus. Number one, nucleus. First we will discuss about nucleus. The atomic nucleus is positively charged. Almost entire mass of atom is concentrated. Entire mass of the atom is concentrated in the nucleus. जो मास होता है एटम का वो किसके तरफ खींचा होता है, या कॉन्सेंट्रेटेड किसकी ओर होता है, या न्यूक्लियस की ओर होता है. ओके, द न्यूक्लियस कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स. ओ न्यूक्लियस, देयर आर टू सबएटॉमिक पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस, and there are two types of subatomic particles. What are these? Nucleus contains two types of subatomic particles together called nucleons. Two types of subatomic particles are in the nucleus and these are called nucleons, जिनको nucleons कहा जाता है. Which are they? First is proton and second is neutrons. Protons and neutrons are the two types of nucleons. Which are the two types of nucleons? Protons and neutrons. Now we will discuss about protons. Proton is a positively charged subatomic particle. Where is the proton? In the nucleus. That is nuclear particles. So proton is a positively charged subatomic particle in the atomic nucleus. Proton, it is positively charged. The positive charge on the nucleus is due to the proton in it. जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण होता है, क्योंकि प्रोटॉन क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज सबएटॉमिक पार्टिकल्स है न्यूक्लियस का. A proton is represented by the symbol P, small capital letter. Okay, a proton is represented by the symbol P. Each proton carries a positive charge. अब जितने भी प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं तो प्रत्येक जो each proton carries positive charge of +1e equal to 1.6 into 10 has to power minus 19 coulomb. When total positive charge on the nucleus is expressed in the unit E. Total positive charge न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन होते हैं उनके टोटल पॉजिटिव चार्ज को शो किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है यूनिट ई के द्वारा. इट्स मैग्नीट्यूड, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल में होता है. इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. ओके, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस of an atom is the atomic number of that element. The numbers of protons. अब न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स काउंटिंग, अकॉर्डिंग टू इट्स नंबर, तो उस एलिमेंट का भी उसको नंबर दिया गया है. एन एटम इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज द एटॉमिक नंबर. जितने
न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे वही नंबर उस एटम को दिया जाता है, किसी भी एलिमेंट का कोई एटम्स हो। फॉर द एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का एटम है, उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, इसलिए ऑक्सीजन को 8 नंबर का एलिमेंट कहा गया है। ओके। फॉर द एग्जाम्पल नियॉन, नियॉन के एटम में के न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन है, इसलिए नियॉन को कौन से नंबर का एटम कहा गया है? 10 नंबर का एटम कहा गया है। इस तरह से जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं उसके अकॉर्डिंग टू उस एलिमेंट का को नाम दिया गया है, उस एटम को उसका नंबर दिया गया है। एन इज डिनोटेड बाय जेड, और जो उसको जेड से डिनोट किया जाता है। ओके। फॉर द एग्जाम्पल ऑक्सीजन जेड इक्वल टू 8, नियॉन Z equal to 10. Mass of one proton is of approximately 1 U, 1 Dalton. 1 U equal to 1.66 into 10 has to power minus 27 gram. The mass of one hydrogen atom is also approximately 1 U. Now we will discuss neutron. Okay, first particle of the nucleus is proton and second particle of the nucleus is neutron. These are nucleons. The second nucleus is neutron. Neutron is an electrically neutral subatomic particle. Neutron is electrically neutral. Okay, and it is denoted by the symbol N, small capital letter, and the number of neutron in the nucleus is denoted by the symbol N. Number of neutron, capital N. Number of neutron, अब न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन हैं उनके नंबर को शो करने के लिए N सिंबल यूज किया जाता है। एटॉमिक न्यूक्ली ऑफ ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन विथ एटॉमिक मास 1 U, हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास को 1 U, atomic nuclei of all the elements except hydrogen with atomic mass 1 U contains neutrons. The mass of a neutron is approximately 1 U, which is almost equal to that of a proton. जो न्यूक्ली मास होता है किसका? न्यूट्रॉन का, अप्रोक्सीमेटली 1 U, और वो किसके इक्वल में होता है? प्रोटॉन के। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉन्स revolving around the nucleus and the empty space in the between the nucleus and electron. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या आता है? फॉर द एग्जाम्पल दिस इज एटम. सो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉन विच रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के आसपास जो रिवॉल्विंग करते हैं इलेक्ट्रॉन, ओके, ये होते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन. एंड इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक एम्प्टी स्पेस है, खाली स्पेस है, ओके, इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में काउंट किया जाता है. द एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. नाउ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो पार्ट्स होता है उसमें इलेक्ट्रॉन वेरी इंपॉर्टेंट, एम्प्टी स्पेस का कोई वैल्यू नहीं है. सो electron, we will discuss about electron. Electron is a negative charged, electron is a negative charged subatomic particle and it is denoted by the symbol E minus, okay, symbol E minus. Each electron carries 1 unit of negative charge, 1 unit of negative charge
each electron carries one negative charge. Mass of an electron is 1800 times less than that of a hydrogen atom. जो हाइड्रोजन का एटम होता है उससे 1800 गुना स्मॉलर होता है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is 1800 times smaller, less than that of a hydrogen atom. Therefore, the mass of an electron can be treated as negligible. Electron in the extranuclear part revolve in the discrete orbit around the nucleus. Electron in the extranuclear part revolve in the discrete orbits around the nucleus. This is nucleus. Electron revolving around the nucleus, right? The orbit being three-dimensional. The orbit being three-dimensional in nature, a term shell is used instead of the term orbit. थ्री डायमेंशनल होने के कारण जो टर्म्स है ऑर्बिट, इसके जगह शेल वर्ड यूज किया जा रहा है. ये जो ऑर्बिट है इसको शेल कहा जाता है. द ऑर्बिट्स बीइंग थ्री डायमेंशनल इन नेचर, अ टर्म शेल इज यूज्ड. द टर्म शेल, ये जो ऑर्बिट है इसको हम शेल इस टर्म को यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ द टर्म ऑर्बिट. द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is determined by the shell in which it is present. और यही शेल के द्वारा वहाँ की एनर्जी डिटरमाइन किया जाता है. द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय द शेल इन विच इट इज प्रेजेंट. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस. If number of electron, for the example ऑक्सीजन की न्यूक्लियस में प्रोटॉन 8 है, और फॉर द एग्जाम्पल एंड इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन भी हैं होंगे, तो उसको क्या कहते हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस. देयरफॉर द इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर बैलेंस्ड एंड द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इसलिए इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों का नंबर अगर इक्वल है तो एटम कैसा होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा. ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हमने डिस्कस किए एटम. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द एटम. नंबर वन न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर. बट बेसिकली देयर आर थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स. नंबर वन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इलेक्ट्रॉन. तो टोटल थ्री सब एटॉमिक पार्ट्स ऑफ एटम. These are protons, neutrons and electron. ओके फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह इतना एटॉमिक स्ट्रक्चर समझा होगा. फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियो आपको पसंद आते होंगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच.